کیونکہ نہیں وہ قبر کا سکون جو کھودا جا رہا ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں، وہ تو خیر ہے کوئی بات نہیں. اڑتی اڑتی خبر ہم نے یہ بھی سنی کہ جی پرائم منسٹر صاحب بھی آ رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب پتہ نہیں کیسے آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، ہیلی کاپٹر سے آئے ہیں یا شاید وہ جو 10 فرلانگ کا انہوں نے راستہ کاٹا ہے وہ شاید اوور نائٹ سڑک، میری خبر ہے کہ شاید کارپیٹ وہاں پہ بچھ گئی تھی. لیکن جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، مطالبہ نہیں کریں گے اور مجھے بندو خان کی سڑک کی اور سمندری کی سڑک کی فوٹیج بھیجیں گے اور میں آ کے آج کہہ رہی ہوں کہ جی آج میں نے اور کوئی نہیں کام کر سکتی کیونکہ میری تو ایک کمفرٹیبل کار میں میری تو کمر جواب دے گئی ہے، تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ ریحام خان ایجنڈا کیا ہے، فیصل آباد کیوں آئی ہو؟ ریحام خان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، آپ نے یہیں رہنا ہے، یہیں اپنے بچوں کو پالنا ہے. آپ کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ کوئی اور آپ کے بچے باہر ملک میں پالے اور آپ کہیں فرار ہو جائیں اور آپ کو 50 روپے کا ہیلی کاپٹر کا پیٹرول بھی کوئی نہیں دے گا. آپ لوگ یہاں پہ صحافت کر رہے ہیں، پچھلے 3 مہینے میں بتائیں مجھے کتنے بلین کا قرضہ پچھلے 3 مہینے میں چڑھا ہے؟ 10 جو تھوڑا ہی سا ہے، کتنا 10.7 بلین میرا خیال ہے. وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں پیچھے. 10.4 بلین کوئی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کو بلین پتہ نہیں ہے کہ کتنے زیروز ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے. خدا کا خوف کریں، تھوڑی سی رہے. کل میں سمندری گئی تو میں نے پوچھا جی سمندری کا نام سمندری کیوں ہے؟ انہوں نے زبردست مجھے ڈاکیومنٹری بتائی اور انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات یہ ہے، میں نے کہا یہاں پہ خواتین آتی ہیں کہ عورت تو نہیں ہے کہ میں آ گئی ہوں. تو انہوں نے کہا جی ہماری تو روایت ہے، یہاں پہ تو ایک پرانی جو ہماری ہیرو ہے وہ بھی خاتون تھی، پٹھانی نام بھی ان کا پٹھانی بیگم تھا. تو یعنی کہ غیرت مند علاقہ ہے، اپنی زمینوں کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے. تو لنڈن پلان یہ ہے ریحام خان کا کہ قوم جاگ جائے، تھوڑی سی غیرت دکھا دیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں. تھوڑی سی ہمت میں نے بھی کر لی ہے. تو پھر اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ گھبراتی نہیں ہیں، میں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں واپس آ گئی ہوں، تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے، مانگے تو صحیح. یہ جو آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے اوپر آشیرواد کسی کا آیا اور وہ فیصل آباد سے الیکٹ ہو کے بچہ منسٹر بن گیا، آپ کا نوکر ہے، آپ کا مالک نہیں ہے. یہ بار بار میں آ کے کہوں گی، اگر فیصل آباد نہ جاگا، اگر یہ پریس کلب نہ جاگا تو مجھے نہ کمپلین کریں، میں تو بار بار آ کے آپ کو کہوں گی. آج پیار سے کہہ رہی ہوں، کل آ کے میں باتیں سناؤں گی آپ کو. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے فیصل آباد میں نہیں اپنے بچے پالنے، میں نے نہیں یہاں پہ رہنا، آپ لوگوں نے یہیں رہنا ہے. یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی آفت آتی ہے، آج لاہور میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، آج ایک جنگ کی صورتحال بنائی جا رہی ہے. آپ کو مجھ سے بہت اچھا پتہ ہے کہ کیا رپورٹ کرنے کی اجازت ہے اور کیا رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری زندگیاں اس زمین سے جڑی ہوئی ہیں، میری زندگی میری خوشی اس زمین سے جڑی ہوئی ہے، تو آپ کی تو ظاہر ہے کہ آپ کا تو زیادہ فرض بنتا ہے. میں آپ کا جو مسئلہ ہے، یہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، میں نے اپنی کوئی بات نہیں کرنی یہاں پہ، میں آپ ہی کی بات کر رہی ہوں. یہ سڑک نہ ہونا، سڑک روزگار دیتی ہے. اور ایک بات صحیح ہے کہ اسلام آباد پریس کلب، جس کی بھی یہ جو اوپر والا فلور آپ کا بڑا خوبصورت بنا ہے، بتا رہے ہیں مجھے کہ پچھلی حکومت نے بنا کے دیا ہے، لیکن میں نے جا کے تختی دیکھی ہے. یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تختیاں اچھی لگاتی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ کی تختی اتنی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے انہوں نے دے دیا اوپر، لیکن تختیاں عمران خان کی حکومت بڑی اچھی لگاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب تختیوں سے بڑھ کے ہم کو اپنا جو ایجنڈا ہے وہ مطالبہ کرنا پڑے گا. احتجاج کے علاوہ ہم کو ایک منظم طریقے سے اپنا حق لینا پڑے گا. آپ کی جان آ کے کوئی نہیں بچائے گا، میری جان آ کے کسی نے نہیں بچائی. آپ کو اپنی جگہ بھی بنانی پڑتی ہے
اور اپنا جو حق ہوتا ہے وہ لینا پڑتا ہے. اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے لیٹ جائیں تو آپ نے دیکھا ہے اس حکومت نے کیا کیا, بلڈوزر چلائے ہیں, غریبوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے ہیں اور امیروں کے گھروں کو انہوں نے ریگولرائز کیا ہے. اگر آپ کو یہ قبول ہے تو مجھے بتائیں, میں واپس چلی جاؤں. آپ سوال کریں جی, مجھے پتا آپ نے سوال کیا کرنے ہیں, اپنی بات نہیں کرنی, مجھے پتا کیا سوال کرنے ہیں آپ. بات کرنے ہیں آپ, ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب آپ بات مکمل کر رہے ہیں. جی You are enjoying very good reputation. So what is your agenda? Have you any positive prediction for Pakistan? You are human rights protector. You are elder person. You are writer. You have written the autobiography of PM. No, I have not written the autobiography of PM. I have written my autobiography. You are briefing. So very good your speech is very good. What is your role? What is your practical role for Pakistan? میرا جی بات پوری کرنا, میرا گول یہ ہے بات پوری کرنا کہ میرا گول یہ ہے کہ میں نے آٹوبایوگرافی اپنی ذات کی اور اپنی زندگی کی لکھی, اور کچھ لوگ جو جڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی لکھا. لیکن میرا گول یہ ہے کہ میں برداشت نہیں کرتی کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو, کہیں کوئی غلط کام ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی اس وجہ سے میرے اوپر رحمت ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر میں ہمت کر سکتی ہوں, میں بھی تو واپس آئی ہوں نا, میں بھی تو واپس آئی ہوں اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری زندگی اوپر والے نے لکھی ہوئی ہے, میرا رزق اوپر والے نے لکھا ہوا ہے, زمین پہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور میں آپ کو بھی مجبور کروں گی اور آپ کے حق کے لیے بھی لڑوں گی, آپ کی آنکھ کھولنے کی کوشش کروں گی جتنا میری بساط ہے. آپ نے سنی ہوئی بات سمجھ نہیں ہوئی, چاہے اگر آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ کیا سیاست میں آئیں گی, اگر سیاست میں کیونکہ آپ نے نہیں پوچھا, اسی ڈائریکٹ گل کرتے ہیں, تسی انگریزی میں گلا کرتے ہو, ڈائریکٹ پوچھو. اچھا میں ڈائریکٹ پوچھتا ہوں, تو ہم ایکٹیو سیاست بھی کریں گے, ہم ایکٹیو ایکٹیویزم بھی کریں گے, ہم ایکٹیو آپ کو ادھر سڑک بنا کے چھوڑ کے دوں گی میں. جی بالکل آنا چاہوں گی, آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ ووٹ ڈالیں گے, آپ کیمپین کریں گے. میڈم میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ پریس کلب میں یہ ٹاک کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے ہماری جو قانونی ہے وہ دے ہی نہ, مجھے ہمیں دے ہی نہ. چھٹو جی یہ شکستہ میں کہتی ہوں ہاں جی رانا صاحب آپ ایک سیکنڈ پلیز. اچھا میرا کوشچن بڑا آپ سے ذاتی سے ہے تھوڑا سا, کہ آپ کے جیسے خد و خال بھی ہیں اور آپ جیسے ہم سمجھتے ہیں آپ سرحد سے بلانگ کرتی ہیں, تو لیکن آپ پنجابی اتنی اچھی بولتے ہیں, بلکہ ہم پچھلے دنوں ہمارا ٹور گیا خیبر کلی کے, تو ہم آپ کو سواد میں ڈھونڈتے رہے کہیں آپ کی شپنگ مل جائے وہاں پر, تو آپ پنجابی اتنی اچھی بولتی ہیں, اس کا بتائیے گا ذرا کہ اس کی. مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں ایک جو ہے نا شاید کوئی ایک پنجابی جو روح ہے وہ پنہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور ذاتی ایک بات بتا دوں کہ مجھے ہمارے سینئر صحافی صاحب ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم جو پشتون ہیں وہ پنجابی بول سکتا ہے, اور جو پنجابی ہے وہ انگریزی فر بولتا ہے. لیکن جو چیز مجھے جو اچھی لگتی ہے اور بری بھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پشتون جو ہے نا جہاں کہیں جاتے ہیں پشتوں میں بات کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو پاکستان کا پنجابی ہے جہاں کہیں جاتا ہے امریکن انگریزی میں بات کرتا ہے سر. تو بات یہ ہے کہ میں نے سردار کمیونٹی میں نہیں جی تسی گل کرو تواڈی پنجابی سننا واسطے آئے. اچھا میڈم تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پنجابی زبان اتنی میں پسند بھی کرتی ہوں, اور پوری دنیا میں پنجابی جو زبان ہے وہ اب رائج ہے, اور وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہماری سردار کمیونٹی کی وجہ سے رائج ہے. کینیڈا میں آپ نے دیکھا ہے کہ آفیشیل لینگویج ہے, اور وہ بڑی شان سے پنجابی بولتے ہیں, اور ہے تو ہمارے ہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہے تو اپنے ہی بھائی ہیں نا. تو 74 سال پہلے تو ہم بھی ساتھ ہی تھے. اسی وجہ سے میں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ پنجابی جب باہر سے ہم آتے ہیں نا, تو جب آپ پنجابی میں بات کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے,
जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है अंग्रेजी भी बोल सकते हैं पंजाबी पंजाबी सिखाओ अच्छा बात ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛਦਾ तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जी पूछो तुसी ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਵੀ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਵੱਕਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਂ next time- ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਮੈਂ- ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ मैं ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ मैं ਗੱਲ ਕੀਤੀ। खुद वीडियो ना मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ हाँ भाई खबरें गजश कर रही है कि आप लोगों ने किस टिकट या फैसलाबाद इलेक्शन किसकी खबरें कौन सी खबरें ये जो आप इलेक्शन में आ रहे हैं नहीं मैं ज़राए कौन सी ये बताएं कि ज़राए अच्छा देखिए मैं जमहूरियत पसंद हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे फैशिज्म नहीं पसंद, तो हमें चूँकि मेरा सहाफ़त से ताल्लुक़ है, मैं फैसलाबाद आई हूँ, मैं वाकई फैसलाबाद की बहुत फ़ैन हूँ। आप मुझे बताएं कि इधर जमहूरी वोट ले लेते, आप बताएं आप जहाँ कहेंगे किस पार्टी को ज्वाइन करना है, आप बताएं नून लीग को ज्वाइन करूं, JUIF को ज्वाइन करूं, जमात इस्लामी को ज्वाइन करूं, PTI को ज्वाइन करूं, सब वोट मैं कहती हूँ, मैं इधर कह रही हूँ, कैमरे पे कह रही हूँ, आप जिस पार्टी को कहेंगे कि ज्वाइन करें और जब कहेंगे ज्वाइन करें। आज मैं सहाफ़ी का इशारे का इंतजार कर रही हूँ। एक वोट लेंगे और मैं बड़ी सीरियसली ये बात कर रही हूँ, आप ये ना समझे कि मैं अज़राइल तफन्नी की बात कर रही हूँ। अगर फैसलाबाद कहेगा कि नून लीग ज्वाइन करे तो हम उसको प्रॉपर वोट लेके सोचेंगे। अगर मेरे PTI के भाई क्योंकि मेरे साथ राब्ते में है, देखिए मैं हमेशा मस्कीन और मजलूम के साथ रहती हूँ। आजकल PTI जो हमारे भाई हैं वो वाकई बहुत मजबूर और बड़ी मस्कीन हालत में। वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत एक्चुअली उनके भी ह्यूमन राइट्स के लिए मैं सोच रही हूँ कि कैंपेनिंग करूँ, लेकिन मैं एम सीरियस। आप जो कहेंगे जो समझेंगे और उसकी वजह यह है कि मेरा सियासत में आने का मकसद मिनिस्टर बनना या किसी की चापलूसी करना या किसी का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनना, किसी का स्पोक्स पर्सन बनना नहीं है। यही मसला है कि अगर मुझे कोई इतनी अथॉरिटी दे दे कि जी ये समुद्री की सड़क आप बना दें या कोटडाली में पानी दे दें या खानपुर में रोज़गार दे दें, मुझे अगर इतनी कोई दे दे बग़ैर किसी पोजीशन, बग़ैर किसी तनख्वाह के, मैं अभी भी तो कर रही हूँ। और ये मैं बड़े आपको सद के दिल से कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल कोई, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बना है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी हीरो प्राइम मिनिस्टर बना है, फ़ायदा मेरी नज़र में नहीं है। फ़ायदा इंसान की ज़िंदगी में बस इज़्ज़त ही, इंसान इंटेग्रिटी ही कमाता है। और अगर इतना बड़ा मौका मिले, मैंने आपको कहा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं अपने भाई की वीडियो लगा दूँगी और उसकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी तो मेरे लिए ये मेरी खुशनसीबी होगी। अगर मैं फैसलाबाद की, और मैं करती हूँ, मैंने पुराने लोगों के, सीनियर सहाफ़ियों के पुराने आर्टिकल्स को जो पसंद किया है वापस रीपोस्ट किया है। आप खिदमत का मौका दें, आप बोलें कि ये करो और आप मुझसे भी करवाएं, आपका हक बनता है। आप दे रहे हैं ना मुझे कवरेज, आज आप सारे आए, मुझे पता है क्या मसले हैं। वो पहले ही डर गया कि जी कॉलोनी बननी, वो पहले ही डर गया भाई मेरा। अच्छा मैडम ये बताएं, जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, अपोजिशन के कुछ धड़े आपस में मिल रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल को आप जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, बिल्ला और खान साहब ने आकर यहाँ पर जब कल आए खिताब किया तो उस पर उन्हें बड़ा थोड़ा सा पेन भी महसूस हुआ। इस सारी मुल्क की सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बात यह है कि मैंने पहले भी ये बात कही थी तो लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी हुकूमत, कोई भी लीडर ऑफ द हाउस या इनकम्बेंट गवर्नमेंट तब बिल्कुल खुली छुट्टी से काम करती है जब वहाँ अपोजिशन ना हो। और पिछले 4.25 साल में हमने अपोजिशन पार्लियामेंट के फ्लोर पे नहीं देखी। मैं दोबारा दोहराई देती हूँ, हिस्बे इख्तिदार से जो मसाइल हैं वो इस वजह से है क्योंकि हिस्बे इख्तिलाफ नहीं है। और हमारा काम यही हो सकता है कि जब एज अ सहाफ़ी या एज एन एक्टिविस्ट, आपको भी पता है ये भाई मेरा करेगा स्टोरी, FIA पर्चा काट देगी, मैं करूँगी मेरे ऊपर लीगल केस हो जाएगा या अडियाला के चक्कर लगा देंगे किसी बहाने, लेकिन पार्लियामेंट आपको इम्यूनिटी देता है। हम
पार्लियामेंट में उन लोगों को इसलिए नहीं भेजते कि आप अपने पीछे प्रोटोकॉल, पार्लियामेंट लॉजेस, कौसार की कॉफियाँ और 3+1 शो पे एक दूसरे के साथ जुगतबाजी और पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें या ट्विटर पे जंगें करें। ये हमें छोड़ें। मैं हूं ना ट्विटर पे, किसी और ट्वीटू सुल्तान की जरूरत नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर की, ना किसी और हिज़्ब इख्तिलाफ की। मैं हूं। आप पार्लियामेंट पे हैं, आप पार्लियामेंट में बात करें। मिनी बजट पे क्यों नहीं बात की? सीपेक अथॉरिटी बिल पे क्यों नहीं बात की? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे क्यों बात नहीं की? मैं हूं यूट्यूब पे बात करने के लिए। हम सारे हैं। हमें ब्लॉगर नहीं चाहिए, हमें मेंबर ऑफ द हाउस चाहिए, हमें सेनेट में प्रेजेंस चाहिए। सडनली कोई बीमार हो जाता है, सडनली कोई अमेरिका चला जाता है, सडनली किसी का ब्याह हो जाता है, सडनली किसी की ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाता है। स्ट्रेटेजिकली अगर मेरा पीएस इंटरनेट पे पढ़ सकता है तो आप अगर बिल नहीं पढ़ सकते जबकि वो इंटरनेट पे 4 अक्टूबर से पढ़ा है तो ये चेयरमैन सेनेट का कसूर नहीं है। मैं आपको इसी बात की तनख्वाह देती हूँ क्योंकि हम इन सबको तनख्वाह देते हैं। मैं जी 3 साल पहले जब गई तो ज़ाहिर है सब लोगों को बहुत चेमगोइयाँ थी, कुछ इसी शहर से ज़्यादा नॉलेज थी, खुदा जानता है कैसे नॉलेज थी। लेकिन उसकी वजह से थोड़े से मसले बने। किताब लिखने की वजह से मुझे 2017 में बड़ी साफ अल्फाज में बताया गया था कि वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है और इमरान खान के बारे में बात जो कोई भी करेगा उसको उड़ा दिया जाएगा। और मुझे डायरेक्टली थ्रेट्स मिली, इनडायरेक्टली थ्रेट्स मिली, मेरे स्टाफ को मिली, मेरी फैमिली मेम्बर्स को मिली, मेरी बेटियों के हवाले दे दे के धमकियाँ मिली। लेकिन जब डेथ थ्रेट्स मिली तो आपको पता है जर्नलिस्ट को डेडलाइन जब मिलती है तो ज़रा ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो मैंने ये सोचा कि अगर वाकई में मुझे कुछ हो गया तो ये कहानी तो कोई किसी को नहीं बता सकेगा, और अगर पहले ही कभी किसी ने कोई किताब लिखी होती तो शायद मुझसे भी कोई ज़ाती गलती ना होती। तो मैंने फिर किताब लिखी और यही बेहतर समझा कि मैं अपनी फैमिली को, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मैं बाहर ले जाऊं। आपने देखा होगा मीडिया में कि यूके में भी हमारे पीछे बच्चों के प्ले ग्राउंड्स में भी, बच्चों के खेल कूद के मैदान में भी लोगों को भेजा गया और कुछ चीज़ें खुद वीडियोस पे वायरल की गई, कुछ चीज़ें हमारे साथ ज़ाती तौर पे हुई जो कि तकलीफ देह हैं। ज़ाहिर है ये फ़ैसला या ये जो जंग है ये मेरी अपनी है, मेरी अपना इंतखाब है और उसकी वजह से अगर मेरे बच्चों को इफ़ेक्ट उसका आए ये ज़ाहिर है मेरे लिए तकलीफ देह बात है और नाजायज़ और नाइंसाफ़ी वाली बात है। लेकिन मेरी जो छोटी साहबजादी हैं अब वो इस इतनी बड़ी हो गई हैं कि मैं उनको छोड़ के आई हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये क्योंकि हम कभी इस तरह फैमिली से जुदा नहीं हुए। लेकिन मैं पिछले जुलाई से आने की कोशिश कर रही थी और कोविड के कुछ मसाइल थे, कोविड वैक्सीनेशंस के भी कुछ मसाइल थे। वहाँ यूके में ऐसा नहीं होता, यूके में सबको बराबर ही ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आप अगर कोई नाम अपना इस्तेमाल करके और पहले वैक्सीनेशन लगा लें। लेकिन लोगों ने मुझे बड़ा मना किया और यही कहा कि सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है। मुझे पता है कि सेफ़ नहीं है, मुझे कोई एश्योरेंस नहीं मिली, कोई डायरेक्ट एश्योरेंस नहीं मिली किसी से। हाँ ये ज़रूर है कि मुझे इनडायरेक्टली ये कन्वे किया गया कि सब बहुत तंग है और आप सबको भी पता है कि वो सारे जो लाए हैं वो भी तंग हैं। लेकिन मेरा अपना मुल्क है, मैं अपनी खुशी से पहली बार भी आई थी, अपनी माँ की मोहब्बत में आई थी। मैंने अपनी वालदा को यहाँ पे दफनाया हुआ है, मेरे वालिद साहब यहाँ पे दफनाए हुए हैं और मैं अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी अब पूरी कर चुकी हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी ड्यूटी निभाई है अपनी फैमिली की और अब मैं समझती हूँ कि मेरी एक फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है जो कि जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है लेकिन उन्होंने बेटों का, बहनों का, भाइयों का हक निभाया। और मेरी बड़ी खुशनसीबी है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि लोग मेरा इंतज़ार करते हैं और मेरे लिए दुआ करते हैं। मुझे ये भी पता है
कि चूँकि पाकिस्तान में लोग झूठ बोलने के और झूठ सुनने के इतने आदी हैं, फरेब देने के और फरेब खाने के इतने आदी हैं कि आपको हमेशा लगता है कि लंदन प्लान है। मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं होगा यकीन, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए मेरा मकसद नहीं है। मैं आई हूँ, रहने के लिए आई हूँ, और जो कुछ भी मुझसे हो सका, चाहे उसका मतलब यह है कि किसी एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है, किसी सियासी पार्टी का हिस्सा लेना है, या हमें कोई एक्टिव रोल जर्नलिज्म के लिए करना है, कोई एक्टिविज्म करनी है, वो मैं करूँगी। दूर बैठ के मुझे लगा कि थोड़ी सी मुनाफिकत है कि पाकिस्तान में, और आप यकीन माने कि मुझे पता था कि हालात कितने मुश्किल हो गए हैं, लेकिन जब मैंने आके अपनी आंखों से देखा है तो यकीन नहीं आता कि इतना बिगाड़ा गया है। तो मैं इसीलिए आई हूँ। मुझे कल इन्होंने, जब लोगों ने पूछा कि वो समंदरी, यकीन नहीं आ रहा कि समंदरी आई है, कि समुद्री क्यों आएंगी। मैंने कहा मैं इसीलिए आई हूँ कि आपको यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि लोग नहीं आते समुद्री, इसलिए मैं आ रही हूँ। मैडम, जैसा कि आपने तस्करा किया कि पहले तो आपको थ्रेट था जी हुकूमत की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, क्या आपकी थ्रेट खत्म हो गया? दूसरा ये है कि शुनीद ये आ रही है कि आप पीटीआई की जो है प्लेटफॉर्म उस पे जो है उससे इलेक्शन में आ रही हैं और आपको सियासी एक्टिविटी के लिए कहा गया। मुझे किसी ने नहीं कहा, और वो इस वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि जो लोग पहले मुझे कहते रहे हैं उनको पता है मैं बात उनकी नहीं सुनती। मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी और अपनी मर्ज़ी की है। तो मुझे ये आपसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझे बड़ी खुशी हो अगर पीटीआई मुझे चाहे कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं, बिकॉज़ मैं जेन्युइनली ये समझती हूँ कि पीटीआई की जो एक्चुअली कोर मेंबर्स थे या जो जेन्युइन पीटीआई थी उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। जो आप काबीना में आप देख रहे हैं ये पीटीआई नहीं है, ये मुशर्रफ की बाक़ियात हैं, पीपीपी है। तो लगता है कि ज़रदारी साहब अगर कल को वज़ीर आज़म बन जाए तो उनको कोई ख़ास रद्द बदल करने की शायद ज़रूरत ना पड़े, शायद वो भी सीख गए हों, शायद वो भी अपने उन लोगों को ना रखें, लेकिन ये पीटीआई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी पीटीआई अब होगी वो पीटीआई तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा है, आज भी ये कहती हूँ कि पीटीआई इमरान थी, इमरान पीटीआई था। इट वॉज अ वन मैन पार्टी, एक शख्स के लिए बनाई गई, एक शख्स ने अपने लिए बनाई, और वो मेरा ख्याल है कि उसका फ्यूचर नहीं है, ना इमरान की सियासत का फ्यूचर है। हाँ, आप मुस्तकिल उनको 10 साल किसी भी एक्सक्यूज़ के तौर पे बिठा सकते हैं, उस तरह तो बड़े और ममालिक में 50-50 साल लोग बिठाते हैं, बड़े लोग जो बिठाने वाले हैं वो बिठाते हैं, लेकिन सियासत नहीं हो रही, ये सियासत नहीं है। क्या आप मुफ्ती कश्मीर को सहारा देने के लिए आई हैं? मैं जी पीटीआई ने तो जो अगर बराए नाम जो पीटीआई है वो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। साफ बात जो है, मैं समझती हूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आना एक पार्लिमानी बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है। मसला इस वक्त ये है कि नो कॉन्फिडेंस पे तो सब राज़ी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस किस में है इस पे राज़ी नहीं है, और ये बड़ा सबसे इशू है कि जब आप अदम एतमाद की मूवमेंट लाते हैं फिर आपको ये बताना पड़ता है कि एतमाद किस में है, और ये अगर पीडीएम डिसाइड कर ले तो ना मैं नजूमी ना मैं पीर, और फिर अगर मैं कोई बात करूँगी तो कहेंगे कि जी आप गैरत दिलाने के लिए आती हैं। मैं तो जो बात जायज़ है वो करूँगी, जब तक डिसाइड आप नहीं करेंगे कि एतमाद किस में है। कि मैं एक्चुअली उस तरह से टीवी चैनल्स की बातचीत चल रही है, काफ़ी अरसे से चल रही है। मसला ये है कि जाहिर है कि हुकूमत के इश्तिहारात रोकने से लोग डरते हैं, साफ बात ये है, और शायद ये आप बात ना चला सकें, और मैं समझती हूँ ये मसला। हाँ जी, खबर साहब जी आइए फिर मेरे खिलाफ बातें करें। आपके खिलाफ नहीं, आपके हक में बात की है। ऐसा है कि आपको खातून और अपनी बेटी पैदा होने का हमें प्रिविलेज दिया कि हमने लफ्ज़ बुज़दिल भी सुन लिया है, कोई मसला नहीं है। तो ये है कि ऑन दी फॉर्म ये लफ्ज़ हमारी काफ़ी वज़नी लगा है, बुज़दिल के हमने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं। हमने अपने मसाइल के हवाले से जो कुछ कहा है वो ऑन दी रिकॉर्ड है, ऑन दी मीडिया में, वो एक अलग बात है। मेरा आपसे एक सवाल है, एक तो आपकी किताब के हवाले से जी। कल मैं बता दूँ, हमारे पास मेरा नाम है, शायद साहब की तरफ से मैं प्रेस क्लब की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर प्रेस की खबर के लिए अर्ज़ है कि जी आपकी जो किताब है वो
جی उसमें जो दस्तावेज जो मवाद होता है जो वो एक बड़ी अहमियत का है। तो मैं उसको इस किताब को अदब की किस मुकाम पे है, उसमें अदबी तरीके से क्या बात की गई है या अदबी रमूज़ो अकाब को कितना मद्देनजर रखे, वो उस हवाले से बात मैंने किताब। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम हमें ये इस चीज़ का पाबंद बनाता है कि हदीस मुबारका में भी है कि मुसलमान को है। तो ये जो किताब है उसमें वो उस बात को तो मैं अलग रखता हूँ, तो मजहबी वाले से बात हो जाएगी कि किसी के आप कुछ बना हमारे वसल्लम का भी बना, लेकिन उसमें जो लफाजी है, जो अल्फाज है, ग्रामर के हवाले से लगा लें, अल्फाज के हवाले से लगा लें, आया वो ज़्यादा जिस तरह कोई बंदा अपने ज़ाती इंतकाम की हवाले से कोई तहरीर लिख रहा हो, और किताब जो है जो हज़ारों साल जिंदा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ज़ाती जिस तरह कोई ज़ाती ताज़ा कोई केस लगी है और हमने अल्फाज को इतना रफ कर दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने किताब पढ़ी है? आपने किताब पढ़ी है? आपने किताब पढ़ी है? नहीं, मैंने आपसे पूछा आपने किताब पढ़ी है? इन्होंने सुनी है सर। नहीं, मैंने आपसे पूछा, मैं भी सहाफ़ी हूँ, आपने किताब पढ़ी है? नहीं, आपने हुजूर आपने मेरी किताब पढ़ी है? पढ़ी है? कितने सफ़ात हैं बताइए, कितने सफ़ात हैं? नहीं, मैं सिर्फ पूछूं कितने सफ़ात हैं? नहीं, मैं सिर्फ पूछूं, यार एक सेकंड क्या हो गया? जो आपने मुराद से वाली बात है, बातें हैं वो ज़्यादा ही वल्गैरिटी है। हुजूर आपने किताब पढ़ी है? आपने वैसे मेरी बात का जवाब दे दिया, खुद जवाब दे दिया, इसलिए कि हुजूर जो बात आप जिस तरफ इशारा दे रहे हैं, जिस शख्स का नाम ले रहे हैं, जो वाक़या कह रहे हैं, वो मेरी किताब में नहीं लिखा हुआ। बस साबित हुआ कि आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी, वहाँ भी वो मैं आपकी दूसरी बात का जवाब देती हूँ। पहली बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने मर्जी से और अपनी उसूलों से और अपनी वैल्यू सिस्टम के साथ जीने का तहिया किया है, और मैं समझती हूँ कि मेरी नज़र में, वैसे ये सवाल मुझ पे बनता नहीं, आपको किसी और से पूछना चाहिए, किसी ने जिसने किताब पढ़ी हो, जिसने रिव्यू किया हो। मुझे जो लोग पाकिस्तान से नहीं जुड़े हुए, जो लोग PTI से या जनरली पाकिस्तान से नहीं जुड़े हुए, जिन्होंने किताब पढ़ी है, और जो इमरान खान को नहीं जानते और जो रिहाम खान को नहीं जानते, मतलब एक खातून का मुझे कोट आया, आप देख भी सकते हैं, गुड रीड्स पे उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो अमेरिकन है तो उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा जिस टेनिस प्लेयर के बारे में लिखी है, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेला जाता। बिलीव इट और नॉट, कुछ ममालिक में इमरान खान को नहीं पहचाना जाता, और वो मुझे भी नहीं पहचानते, और उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा हुआ था, शायद सिर्फ कवर पे देखा हुआ। उन्होंने जब किताब पढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये किताब किसी भी पेरेंट के लिए, किसी भी फैमिली सोसाइटी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने ये किताब एक्चुअली किसी के लिए ख़रीदी थी, पर मेरी वालदा बीमार हो गई और वो ICU में थी और मेरी फ़्लाइट डिले हो गई, तो मैंने किताब जो गिफ्ट के लिए खोली थी, क्योंकि दुबई में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने वो पढ़ना शुरू की और मैंने एक दोपहर में वो किताब पढ़ ली। मकसद यह है कि किताब मैंने वैसे कोई अदीब और कोई लिटरेरी अप्रूवल के लिए नहीं लिखी थी। मैंने आपको बताया, धमकी मिली और मैंने कहा ये बात मैं अपनी ज़िंदगी में और बाकी लोगों की ज़िंदगी में लिख दूँ, चाहे तो मुझको कोर्ट ले जाए, चाहे तो चैलेंज कर ले, चाहे तो ले जाए, लेकिन वो किताब मैंने हीरो बनने के लिए, आपके फूल गुलदस्ते रिसीव करने के लिए, कोई पोजीशन लेने के लिए, माल बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल किताबों में कोई ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, मैंने फ़र्ज़ के तौर पे लिखी। आप जो कह रही हैं कि किसी के ऐप पे पर्दा डाला जाए, अगर कोई किसी के साथ, मेरा मानना ये रिहाम खान की सोच है, मैं अपनी सोच से ज़िंदगी गुजारती हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर किसी से कोई ज़ाती तनाज़ा हो या कोई ज़ाती ब्रेकअप हो जाए या किसी दुश्मनी हो और किसी तीसरे शख्स की सेहत पे, ज़िंदगी पे उसका असर ना हो, तो उसको नहीं बताना चाहिए। वो इंतकाम हुआ, वो गुस्सा हुआ। मैंने बड़े ठंडे
दिमाग से इस वजह से लिखी कि जिन लोगों का जिक्र किया है, एक डोमेस्टिक वायलेंस की बात की गई है जो कि एक बहुत बड़ा मसला दुनिया में है। दूसरा मसला जिस शख्स की आप बात करें जो आज प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे है, वो इसलिए लिखी क्योंकि 22 करोड़ अवाम के अलावा अफ़गानिस्तान, इंडिया, टर्की, मतलब पूरे खित्ते में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जो बैठा होता है उसकी बिहेवियर, उसकी डिसीजन मेकिंग उसको अफेक्ट करती है। और मैंने बड़ी नेक नियति से अपनी समझ के मुताबिक, इंसान हूँ, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन अपनी समझ के मुताबिक ये सोचा कि लिख डालूँ इससे पहले कि कोई मुझे मार डाले। आपको पसंद ना पसंद आना आपका हक है। हाँ जी, सबूर भाई, सबूर सर। आपको कहता आप बच्चों को लेकर मुल्क से बाहर चले गए, वहाँ अपने बच्चों को सेटल किया और वापस लौटे हैं, यहाँ पे आके आपने फैसलाबाद में टूटी सड़कों को सहाफती गैरों से करते हुए इश्तिहार दिलाने की कोशिश की है कि हमारे भी बच्चे हैं, क्या चाहते हैं कि हम कलम छोड़ के जाके नुमाइंदों के घरों का घिराव कर लें, या क्या एजेंडा है, क्या प्लान क्या है? प्लान मेरा ये है बड़ी सिंपली कि वैसे मैंने इश्तिहाल बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन इस पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे अगर मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूं कि आप उठ खड़े हो एहतजाज के लिए, तो हम पहले भी डी चौक में किसी और वजह से एहतजाज करते रहे, इसमें भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये था कि जो यहाँ पे इन्वेस्टर है, मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको उसका हक बनता है कि वो मुतालबा करे, क्योंकि आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं, आपको कहते हैं जलसे के लिए पैसे निकालें, आपसे फ्यूल मांगते हैं। मुझे पता है, मेरे आंखों देखा हाल है, आपका हक बनता है आपके लिए सड़क बना के दें, क्योंकि मैंने कहा कि जो पार्लियामेंट में बैठा है वो आपका नौकर है, आप उसके नौकर नहीं हैं, आप उसके मालिक हैं, आपकी तनख्वाह पे है वो। मैं सहाफ़ी बरादरी को मैंने ये कहा कि ये ज़्यादती है कि आपके सर पे छत नहीं है, आपका हक बनता है। फिर अगर सहाफ़ी को कहें कि जी लिफाफी है या रिश्वत लेता है, अगर कोई पटवारी 43,000 43,000 रुपीज़ 18 साल की सर्विस के बाद कमाता है, फिर आप क्या आपका बनता है कि आप कहें कि जी ऊपर की कमाई करता है, कि उसने अपने बच्चों को नहीं पालना? मैं आपको जिहाद करने को नहीं कह रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आपका हक बनता है वो आपको मांगना चाहिए। जैसे फैसलाबाद मेरा हक बनता है, कल मुझे किसी ने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा तो कहने लगे जी सिक्योरिटी का मसला। मैंने कहा मेरे बाप दादा का भी मुल्क है ना, हु इज गोइंग टू डिक्टेट कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या बोलूँ? नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपने बच्चों को जाके, मैं तो इसी की बात के खिलाफ हूँ, मैं तो कह रही हूँ आपके बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। और मैं क्या सजेस्ट कर रही हूँ आप मुझे बताएं। मैं रेहाम खान आपके तरफ से पिटीशन डालती हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट है ना, मैं वापस जाके आपके हक से अपने को पिटिशनर बना के हाई कोर्ट में पिटिशन डालती हूँ। आप मुझे बताएं कहाँ डालूँ? मैं सहाफ़ी कॉलोनी के लिए पिटिशन डालूँ, पब्लिक इंटरेस्ट है, मैं आपकी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के लिए डालती हूँ, ना खड़े हो आप मेरे पीछे। मैं किसान के साथ जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, मैं आई हूँ वापस। मैं क्यों वापस आई हूँ? क्योंकि मैं ट्विटर पे ब्लॉगिंग कर करके मैं आपको बताऊँ, आपको मैं ये रिकॉर्ड पे कह रही हूँ, मैं अपने जो इधर उधर पैसे हम लगा रहे हैं, मैं आपके हक पे पिटिशन दायर करूंगी, खुद पिटिशनर होंगी, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका हाई कोर्ट में। आप बताएं किस हाई कोर्ट में करूँ? ना किया तो आप मेरा गला पकड़े, और ये आपका हक बनता है, ये मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन अगर मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे होंगी तो ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है ना, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, और मैंने फ़र्ज़ वो अदा किया है जिसके लिए मैं सुन रही हूँ।